wasallam taught us to live with virtuous suhoor. When all the souls were completely engrossed in ignorance, hearts were overflowing with hypocrisy. This is Aisha Malik from Behria Foundation College, Jabbar. Thanks for the opportunity. What an honor for me to stand. Prophet Muhammad was kind to all the creatures, including animals and birds. Prophet Muhammad said, kindness is the mark of faith, and whoever is not kind has no faith. Thank you so much. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہی میسج دیتا ہوں کہ پازیٹیوٹی یا توکل از دا کی. اور لاسٹلی یہ ہے کہ جس طرح بعد اسپیچ کمپٹیشن ہوا ہے، آرٹ کا ہوا ہے، دس از آل ویری گڈ، لیکن ابھی جو نیڈ آف دا آر ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، دیٹس آئی ٹی. جس طرح ایک ٹائم پر ہمیں انجینئرز ریکوائرڈ تھے، پھر ڈاکٹرز ریکوائرڈ تھے، بینکرز ریکوائرڈ تھے، وہ ویکیومز اب فل ہوتے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ ہفتہ 10 دن پہلے گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہے، اٹس سیڈ ٹو سے لیکن اٹس ہارش ریئلٹی کہ ڈیلی ویجز پر ڈاکٹرز کو جو ہے وہ لیا جائے گا. تو ابھی آئی ٹی جو ہے، آئی ٹی کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ظاہر ہے ہر انسان اپنی افورڈیبلٹی کے اکارڈنگ وہ آپ گیجٹس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہو بچوں کو، لیکن جب بچہ میٹرک کرے یا ایف ایس سی کرے تو آپ ان کو اکوپ کریں، یا بچوں اگر آپ کو اس بات پہ دھیان دو آئی ٹی جس میں اور ایک سچ اے واسٹ فیلڈ جس میں ویب ڈیزائننگ ہے، جس میں بائک سیلنگ ہے، اور اچھا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، نیٹ ورک ہو، آپ اس کو ایون اف یو ہیو اے گڈ موبائل فون اور آپ کو ایک فیلڈ پکڑ لو. صفدر ملک چکوال پلس سے آپ سے سپر اسٹار آف چکوال کمپٹیشن چل رہا ہے خوبصورت سے آریزن کالج میں. تو یہاں ہمارے ساتھ ایک ہماری سینئر ایجوکیشنسٹ موجود ہیں. یہ ہمارا بہت ہی پیارا سا ایک اسکول اسی سال اسٹیبلش ہوا ہے، بحریہ فاؤنڈیشن اسکول انچور برانچ. تو اس کی پرنسپل ہیں ہمارے ساتھ حبیبہ، یہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں. تو آپ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا آپ کا یہ ایکسپیرینس. السلام علیکم. بہت اچھا رہا ایکسپیرینس، ماشاء اللہ بچوں نے پرفارم کیا. کل نعت کمپٹیشن میں بھی میرے اسکول کے بچے آئے ہوئے تھے، اور آج اسپیچز کے لیے 8 اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول سے آئے ہیں. ماشاء اللہ سب کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. لاسٹ ایئر میری بیٹی نے ون بھی کیا تھا، یہاں سے سپر اسٹار آف چکوال رہی تھی جنت زارا، اور اس سال ہم اپنے اسکول کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں. لاسٹ ایئر بحریہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا تھا، اس دفعہ بحریہ فاؤنڈیشن اینکر اسکول کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرنے آئی ہیں. جنت زارا سپر اسٹار آف چکوال رہ چکی ہیں. ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، عثمان صاحب کفس کالج اور ہیرا اسکولس کے حوالے سے ان کی پاپولیرٹی ہے. تو یہ ان کا پروجیکٹ ہے اور بہت ہی شاندار پروجیکٹ ہے. تو میم سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ اتنے جو اسکول یہاں پہ ہیں اس کمپٹیشن کے اندر، اور جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے، تو یہ جو ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس بھی اس کے ساتھ ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر بحریہ فاؤنڈیشن، کیونکہ بحریہ فاؤنڈیشن کے نام سے ہے ہمارے پاس، اور اینکر اسکولس میں ہمارا جو ہے وہ فرسٹ ہے. یہ اس میں ہمیں جو ہے لیڈ کر رہے ہیں رب نواز صاحب، ٹھیک ہے. اور میرا رب نواز صاحب کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور تمام جو باقی ادارے ہیں ان کو سر رب نواز اور سر عثمان مل کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ادارے کو سر رب نواز صاحب دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے سر رب نواز کے ساتھ میرا جو ورکنگ پیریڈ ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. اور اس سے پہلے بھی میں مختلف جگہ پہ جاب کرتی رہی ہوں، لیکن سر رب نواز سے ماشاءاللہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا. جی بیٹے، آپ کا نام؟ جنت زارا. جنت زارا، آپ کو کیسا لگا یہاں پہ آ کے؟ I am feeling very good. یہ سپر اسٹار کمپٹیشن کیسا لگا آپ کو؟ Very nice and very organized event. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی جو ہے اسپیچ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسپیچ ہی نہیں کی ہے، آپ نے اپنے امپریشن بھی اور باڈی لینگویج بھی بڑی اچھی شو کی ہے. تو یہ آپ کو کس نے، ماما نے سکھایا ہے یا ٹیچر نے سکھایا ہے؟ Both of them.
बहुत आपने? जी बेटे, आपका नाम? शेरबानो शहजाद शेरबानो, आपने किस में हिस्सा लिए? उर्दू उर्दू तो स्पीच में, तो कैसा लगा? गुड पोजीशन भी आएगी या? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, तो आपका नाम बेटे? खतीजा भट्ट खदीजा। जी जी खदीजा, आपने किस में हिस्सा लिए? उर्दू स्पीच में। उर्दू स्पीच में, तो कैसा लगा आपको उर्दू स्पीच में हिस्सा लेके? वेरी नाइस आपका स्कूल कैसा है? वेरी नाइस। वेरी नाइस। बैरिया स्कूल से एक टीचर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। उस्मान नाज उस्मा, आपका शोबा कौन सा है? जी टीचिंग का ही है। मैं बेसिकली इनकी इंग्लिश क्लासेस सारी लेती हूँ बैरिया की, और माशाल्लाह जब से ज्वाइन किया है मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी है। सर अब नवाज बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और मुझे वाकई इन लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। ये माशाल्लाह इंग्लिश की टीचर हैं और इंग्लिश स्पीच के बच्चे इनके यहाँ पे आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये सुपरस्टार ऑफ चकवाल कंपटीशन का ये माहौल इन्हें कैसा लगा और इनके बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। सब बच्चों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इस लेवल पे अगर कोई बच्चे सामने आके बोल भी देते हैं तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका अच्छा खासा कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है वो बनता है। क्योंकि इतने ज़्यादा ऑडियंस के सामने अगर 1 और 2 क्लास के बच्चे भी बोल रहे हैं, सो दैट्स अ फैंटास्टिक जॉब। तो हमें तो ये चाहिए कि बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल अप हो, वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया मैम आपका। ये बच्ची भी साथ मौजूद है हमारे। बेटे, आपका नाम? नालैन फातिमा। नालैन, आपने किस में शमूलियत की है? इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच। तो इंग्लिश स्पीच में कैसा लगा आपको यहाँ पे परफॉर्म करके इतने ज़्यादा बच्चों के अंदर? वेरी नाइस। सीनियर मोस्ट टीचर हैं, तो इनसे पूछते हैं इनका इसमें ग्रामी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीना नवाज़ है और मैं बैरिया फाउंडेशन एंकर स्कूल से आई हूँ अपने बच्चों को साथ लेकर और उर्दू स्पीच के लिए। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का, और मतलब अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों ने भी बहुत अच्छा, और हमें होप है कि इंशाल्लाह कि पोजीशन हमारे स्कूल की आएगी इंशाल्लाह। और ये जो सुपरस्टार कंपटीशन चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील वाइज भी चल रहा है, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? आपको ये हमें जो बच्चों की अप्रोच है और जो बच्चों के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? जी बहुत अच्छा, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, और मैं इनकी ये जो कावश है इसको बहुत अच्छा सराहना चाहूँगी, क्योंकि ना इससे वही बात मैम वाली बात आ जाती है कि कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का ग्रो अप हुआ है इस तरह से। और मतलब ये छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ हैं। जी बेटे, आपका नाम? उसवा फातिमा। उसवा फातिमा। जी। उसवा फातिमा, आपने किस में शमूलियत की है? उर्दू स्पीच में। उर्दू स्पीच में। तो कैसी लगी आपको उर्दू स्पीच? बहुत अच्छी। ये तो बहुत बच्चे, तो क्या समझती हैं कि कुछ हमारी भी पोजीशन आएगी? जी आएगी इंशाल्लाह। कौन सी पोजीशन आएगी? जो अल्लाह ने चाहा। स्कूल से ही हमारे पास एक साथ टीचर मौजूद हैं, इनसे जरा पूछते हैं मैम आपका नाम क्या है और कौन सा शोबा है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सहरिश परवेज़ है और साइंस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। जी, तो ये साइंसेस कहाँ और ये आर्ट की तकरीरें कहाँ, ये आप किधर आ गई? मैं क्योंकि मेरी क्लास आई हुई है और इनकी प्रिपरेशन में आई एम अ गुड स्पीकर, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, साइंस के साथ अच्छी स्पीच का भी। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक मैम आपके बच्चों के लिए और आपकी मेहनत ताकि वो समरावर हो। थैंक यू। सुपरस्टार ऑफ चकवाल कंपटीशन के इस दूसरे रोज़ हम यहाँ पे मौजूद हैं और एक हमारे साथ बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और ये मैम से पूछते हैं कि ये कौन सा स्कूल है कि जिसकी इतनी लंबी लाइन आपने लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम मिनासाबाद कैंपस चकवाल, और ये हमारे साथ बच्चे आए हैं उर्दू और इंग्लिश स्पीच के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कंपटीशन रहा है। तो ये बैरिया फाउंडेशन स्कूल है हमारा, जलम रोड पे मिनासाबाद कैंपस है। तो ये माशाल्लाह हर के जो सुपरस्टार कंपटीशन हुआ है पिछले 10 सालों में, सब में इन्होंने शिरकत भी की है और बड़ी लाइन लगा के इन्होंने पोजीशंस भी ली हैं। ये इनकी प्रिंसिपल जो हैं उनकी मेहनत है या बच्चों की अपनी मेहनत है, ये ज़रा मैम से पूछते हैं।
हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम की सुपरविजन में बहुत अच्छा सिलसिला ये चल रहा है, और ऑब्वियसली मैम की सुपरविजन में ही सारा काम होता है, टीचर्स की एफर्ट होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है कि बच्चे खुद इस चीज़ के लिए विलिंग होते हैं, तो हम इनको यहाँ पे लेके आते हैं और ऑडियंस को और इतने बड़े क्राउड को फेस करते हैं। जी सही हो गया। तो बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना। आपका नाम? आई एम मोहम्मद तला। मोहम्मद तला, क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? तो लगता है ये चकवाल वालों से सारी पोजीशनें कैंसिल हो गए हैं। नो, कौन सी तकरीर की आपने, इंग्लिश उर्दू? उर्दू। गुड, अच्छी हुई। यस। चलो, आपका नाम? मीरा फातिमा। जी मीरा फातिमा। कैसी रही आपकी तकरीर? बहुत अच्छी रही। इंग्लिश थी उर्दू? इंग्लिश थी। कौन सी पोजीशन लेंगी? फर्स्ट। फर्स्ट। आपका नाम? आई एम मंतशा काजमी। मुंतशा काजमी, इतना प्यारा नाम है आपका और इतनी प्यारी प्यारी आंखें आपकी, तो आपने क्या उनसे तकरीर की है? इंग्लिश। इंग्लिश? यस। इंग्लिश मुश्किल नहीं लगती? नो। हमारे कॉलेज में ना एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे जब तक देसी मुर्गा ना खाए इंग्लिश नहीं आती। तो आपको कैसे आ जाती है? आई लाइक इंग्लिश। गुड। तो ये कैसा है कि कौन सी पोजीशन लेंगी? फर्स्ट और सेकंड। गुड गुड। ये बच्चों का कॉन्फिडेंस है जी, और ये देख के हम बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़ा बड़ी बात है। जी बेटे, आपका नाम? आयत फातिमा। आयत, आपने किस में हिस्सा लिया? इंग्लिश। इंग्लिश में। तो कैसी रही? अच्छी। गुड। जी बेटे, आपका नाम? माय नेम इज आमना बशीर। तो कैसा रहा आमना? बहुत अच्छा। इंग्लिश थी वो उर्दू थी? उर्दू। होगी आपकी तकरीर? हो गई। तो क्या बनेगा? ठीक होगा। आएगी पोजीशन? आई तो है। जी बेटे, आपका नाम? इज़ा आसिम। इज़ा आसिफ, इतना प्यारा नाम है आपका। तो आपने तकरीर कैसी की? प्यारी की है या नहीं? नहीं, बहुत अच्छी की है, इंग्लिश में की है। अच्छा, गुड। तो पोजीशन आएगी इंशाल्लाह जरूर। ये हमारी बच्ची ने बड़ी प्यारी तकरीर की है, बड़ी जबरदस्त। तो बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। जी बेटे, आपका नाम? ईशाल नदीम। ईशा? ईशाल नदीम। ईशाल नदीम। तो ईशाल, आप तो इधर किधर इतने बच्चों में मैं फर्स्ट टाइम नहीं। कंफ्यूज नहीं हुई? नहीं। फर्स्ट टाइम था तो इंग्लिश में की है उर्दू में? इंग्लिश। कैसी रही? बहुत अच्छी। कौन सी पोजीशन आएगी? फर्स्ट सेकंड आ सकती है। पहले ही आपका स्कूल सारी पोजीशनें ले लेता है, ऊपर से आप भी ने भी एंट्री डाल दी है, तो क्या बनेगा ये बाकी लोगों का? हाँ? फर्स्ट टाइम। अच्छा, गुड। आपका नाम? लाया शहजाद। जी, किस में थी आप? इंग्लिश में? मैं उर्दू स्पीच में थी, लेकिन मेरी अभी हुई नहीं है। अच्छा, अभी हुई नहीं है। चलें जी, अच्छा कीजिए। अब बस मेरी बारी आने वाली है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जी बेटा, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम इजाब सर है। इजाब, आपने किस में तकरीर की है? इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश में कैसी रही? माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। थैंक सो आपका मच। नाम? लाइबा नूर। लाइबा, इंग्लिश में की है तकरीर या उर्दू में? उर्दू। उर्दू में। तो कैसी रही? बहुत अच्छी। बच्चे इतने ज़्यादा बच्चे हैं और इतने बड़े छोटे सारे इकट्ठे हुए हैं, तो ये सारा कम्बिनेशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपका नाम बेटा? मेरा नाम मिशन मरियम है। मिशेल मरियम। जी। बहुत प्यारा नाम है आपका, माशाल्लाह। आप हैं भी बड़ी प्यारी। तो आपने इंग्लिश में की है या उर्दू में की है? मैंने उर्दू में स्पीच किया है। उर्दू में की है। जी। तो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। कौन सी पोजीशन लेंगी? इंशाल्लाह फर्स्ट पे आएगी। गुड। ये होता है जी कॉन्फिडेंस, और ये होता है एतमाद। मैम से पूछते हैं इनका स्कूल का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे स्कूल का नाम नज़र पब्लिक स्कूल है सर। हमारा ये गाँव एंड उडियाल साइड पे, उधर से आगे एक एरिया हमारा काफ़ी बैकवर्ड है, लेकिन हमने अब स्कूल बनाया है, वहाँ पे हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम जो है वो दे रहे हैं। नहीं मैम, जब जहाँ तालीम आ जाए ना, वहाँ वो एरिया बैकवर्ड नहीं रहता, वो एरिया डेवलप होता है। और ये आपकी बहुत बड़ापन है कि आपने एक छोटे एरिया में एक इतना अच्छा स्कूल, नज़र पब्लिक स्कूल आपने बनाया है। और माशाल्लाह हमने आपकी बड़ी अच्छी फेम सुनी है आपके एरिया में। तो आप क्या समझती हैं कि अपने जो बच्चों की कारकर्दगी है उससे मुतमईन है? और ये भी कि एक छोटे से स्कूल से आपने इतना बड़ा इवेंट में आ गई, तो क्या आप सोच के आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये स्कूल 2 साल हो गए हैं, ये स्टेप उठाया है, स्कूल बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं। हम अब ज़िला लेवल पे कि इस कंपटीशन में आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, ताकि बाकी भी जो हमारे गांव के, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। मुझे अपने बच्चों पे इतना एतमाद था कि ये वहाँ जाके 500 लोगों के सामने स्पीच, नात उसको अच्छी तरह से
कर सकेंगे। नहीं, माशाल्लाह आपके बच्चों ने बहुत अच्छा किया भी, माशाल्लाह, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम बड़े इम्प्रेस हुए हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कूल शहर के मौजूद हैं वहाँ पे आपके बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। जी बच्चे, आपका नाम? मुस्का ज़ैनब। मुस्का, कैसी आपने इंग्लिश में स्पीच में हिस्सा लिया या उर्दू में? उर्दू स्पीच कैसी रही? बहुत अच्छी। पोजीशन में आएगी कोई? पता नहीं। कोई पता नहीं है, इंशाल्लाह। जी आपका नाम? मेरा नाम उमैर है। तो आपने किस में हिस्सा लिया? इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच में, माशाल्लाह। अब इतने दूर से आके आपने इंग्लिश स्पीच में, आपकी मैम ने, इसका मतलब आपको बड़ी मेहनत करवाई है। यस। अच्छा, पोजीशन आपने कैच लेनी है चकवाल शहर वालों से? यस। गुड गुड। आपका नाम? अनाया से। अनाया, आपने किस में हिस्सा लिया? मैंने उर्दू स्पीच में हिस्सा लिया। उर्दू स्पीच। तो कैसी रही आपकी स्पीच? अच्छी। इतने ज्यादा बच्चों के दरमियान आपने अच्छी स्पीच की है, तो पोजीशन तो आएगी फिर इंशाल्लाह पोजीशन आएगी। तो हमारे साथ एक स्टेप स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा हमारा पिंडी रोड पे इदारा है, बड़ा नोबल इदारा है। उसकी जो प्रिंसिपल है मैम आमना, उनका बहुत बड़ा किरदार है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो उनकी एक तैयार की हुई बच्ची हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि वो उन्होंने कैसे शमूलियत अख्तियार की और कैसा लगा। बेटे आपका नाम? I'm Isha Fatma from grade 9 and I'm here to represent Step School System Chakwal, and I was elected for the speech competition. The speech competition was Shining Stars of Chakwal, and I was elected for the English category. The topic of my speech was the blessed personality and teachings of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So I think that it is a good initiative that we groom the talents of others, the children that are underconfident. We made them confident and we groomed the hidden talent in them. तो ये आपको यहाँ पे इन बच्चों के साथ मुख्तलिफ लेवल के बच्चे थे और मदारस के भी बच्चे थे और यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे थे, तो ये कैसा ये कम्बिनेशन, आपको इसके ऊपर आपके कमेंट्स? Yes, I think that it was a really good competition. The competition was also very tough, but I think that all the students showcased their best talents. Do you hopeful for position? Yes, I am hopeful for securing the top position, inshallah. Best of luck to everyone who participated. So, बेस्ट ऑफ लक बच्चे, बहुत अच्छी बात की बच्चे ने, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि सबके लिए ये बेस्ट ऑफ लक नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रही हैं। हमारे साथ इनकी इतनी अच्छी स्टूडेंट जो हैं, इनकी टीचर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे कैसे तैयार कर लिए हैं। वैसे बच्चों की अपनी मेहनत भी है, कुछ टीचर्स की भी मेहनत होती है। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे आके ज़्यादा बूस्ट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके। इस तरह के कंपटीशंस मज़ीद होने चाहिए ताकि जो हमारे इस तरह के स्टार्स हैं वो सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आए और फिर ज़्यादा मज़ीद बच्चों की ना ग्रूमिंग हो इस तरह। कुछ बच्चों ने मैम पहले हमारे साथ बात की है, तो उन्होंने एक एतराज़ किया है कि बच्चों को जो है वो टाइम कम दिया गया है, तो इसके अबाउट आप क्या कहती हैं? सर टाइम का भी फैक्टर था, कुछ का था कि टाइम में देना चाहिए। वैसे ये होता है कि स्पीच का स्टार्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब उसका लेवल लो होता है, लेकिन जब स्पीच के दरमियान में और एंड का स्पीच का जो टाइम होता है ना, वहाँ पे स्पीच की पिच होती है, वहाँ पे जाके पता चलता है कि बच्चे का कैसा था और उसका एंड कैसा कर रहा है। वो उस लिहाज से कुछ का था, लेकिन जाहिर बात है अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था, तो उस लिहाज से टाइम कम था, तो फिर ये जजेस का डिसीजन था, तो ये ठीक था। फिर अब जाहिर बात है हर बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है, हर बच्चे ने स्टेज पे आके बोलना है, तो उस लिहाज से फिर ये ठीक था कि टाइम कम रखा गया है। मतलब आप समझती हैं कि अगर टाइम कम रखा गया है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो बच्चे जो हैं वो कवर हुए हैं, हत्ता कि यहाँ पे जो 2 स्टेज भी बनाए गए थे 2 स्टेज पे तैयार किए गए, उन 2 स्टेजेस पे बच्चों ने परफॉर्म किया, और अभी तक उसके बावजूद भी अभी काम चल रहा है। तो मतलब ओवरऑल ये अगर आइडियल सिचुएशन तो जाहिर बात है वही है कि बच्चों को लॉन्ग टाइम दिया जाए। हाँ जाहिर बात है, अब हर बच्चे को उसने इतना स्ट्रगल किया, उसने हार्डवर्क किया, अपनी उसने तैयारी की, और हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि आके वो स्टेज पे ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर आके बोल सके स्टेज पे। नासाबाद कैंपस से एक बड़ी टैलेंटेड बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या नाम है बेटे आपका? सईदा अली ज़ैनब काज़मी। सईदा अली ज़ैनब काज़मी जो हैं ये हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने किस में तकरीर की, इंग्लिश में या उर्दू में? उर्दू में।
تو بیٹے کیسی رہی تقریر آپ کی؟ بہت اچھی. اتنے بڑے سٹیج پہ اور یہ جو سپر سٹار آف چکوال کمپٹیشن ہے اس میں شرکت کر کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. یہ بچے کچھ پہلے اعتراض کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم بہت شارٹ دیا گیا ہے اور بھی بڑے مسائل ہیں، تو آپ کو بھی ایسی کوئی چیز فیلنگ ہوئی، فیس ہوا ایسا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. آپ یعنی آپ کو کوئی آپ کو اپنی چیزیں پرفارم کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ کوئی آپ کو ایسی فیل ہوا ہو کہ کسی بچے کو کسی کو برتری دی گئی ہو یا کسی کا نمبر پہلے آ گیا ہو؟ نہیں وہ ساری لائن بج چکی ہیں. آپ کے تو جو ہیں وہ پیرنٹ بھی ساتھ تھے اور وہ ماشاءاللہ بڑے انفلوئنس بھی ہیں، تو انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال بھی کرنے کی کوشش کی ہے بار بار، میں نے دیکھا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو آپ کی باری جو ہے وہ ٹائم پہ آئی ہے یا پہلے آ گئی ہے؟ ٹائم پہ آئیے. ٹائم پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں فوجی فاؤنڈیشن کالج پنڈی روڈ سے ان کی ٹیچر اور ایک ننھی سی بچی. تو پہلے یہ طالبہ سے بات کرتے ہیں. جی بیٹے آپ کا نام؟ ابیا. ابیا. تو کیا کون سی تقریر کی آپ نے؟ انگلش. انگلش میں کی ہے. تو کیسی رہی؟ بہت اچھی. بہت اچھی رہی. تو کیا آپ کو پوزیشن بھی لیں گی؟ آپ کا اسکول تو ماشاءاللہ لائن لگا کے بڑی پوزیشنیں لیتا ہے، تو یہ آپ بھی اس میدان میں آ گئی ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ باقی لوگ کدھر جائیں گے؟ چلیں جی ہمارے ساتھ ایک ٹیچر بھی ان کی موجود ہیں، سینئر ٹیچر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ سارا سلسلہ کیسا لگا اور اب آپ کے بچوں نے کیسا پرفارم کیا؟ السلام علیکم، میرا نام رضا زارا ہے فوجی فاؤنڈیشن اسکول سے، اور بہت اچھا یہ ایونٹ آرگنائز ہوا ہے. ملک صفدر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایسا ایونٹ جو ہے وہ ارینج کیا ہے بچوں کے لیے، چکوال کے ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے. بچوں کے لیے بہت اچھی پلیٹ فارم اور اچھی اپرچونٹی ہے کہ بچے آئیں اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ دکھا سکیں. بہت شکریہ ملک صاحب کا. تھینک یو. بہت شکریہ میم، بہت نوازش ہے. ہمارا بہت اچھا اور زبردست اسکول ہے. سپر سٹار آف چکوال کے اس شاندار کمپٹیشن سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں مناس پبلک اسکول کی پرنسپل میم صابرہ، جو کہ ایفسکا کی تحصیل چکوال کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی موجود ہیں ان کے اسکول کے. ذرا پوچھتے ہیں ان سے. جی بیٹے آپ کا نام؟ رابعہ فاطمہ. رابعہ، آپ نے کس میں تقریر کی ہے؟ اسپیچ. انگلش میں کی ہے اردو میں؟ اردو میں. کیسی رہی اسپیچ؟ اچھی. اتنی بچوں میں ڈر نہیں لگا آپ کو؟ مزہ آیا؟ جی بیٹے آپ کا نام؟ آئمہ. آئمہ، آپ نے انگلش میں کی ہے اردو میں؟ اردو اسپیچ. اردو اسپیچ کیسی رہی؟ بہت اچھی. تو آپ لوگ اتنے بڑے کمپٹیشن میں آ گئے، تو آپ کی میم کو کتنی تیاری کرواتی ہیں؟ جی خود کرواتی ہیں. جی خود کرواتی ہیں. خود تیاری کرواتی ہیں. تو کیسی تیاری کی ہے؟ کوئی پوزیشن بھی ملے گی یا صرف تیاری میم نے کروائی ہے؟ انشاءاللہ پوزیشن ملے گی. گڈ. جی میم، تو کیا اس سے آپ اتنا اچھا ان بچوں کو ارینج کرتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے اسکولوں کے مقابلے میں آپ نے لا کھڑا کیا ہے ان بچوں کو، تو کیا آپ کا جذبہ ہے آپ کے پیچھے؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی پوزیشنز لیتے ہیں، اور ہمارے چکوال میں تو ویسے ہی چکوال کی سرزمین بہت زرخیز ہے، ہونہار ہیں سارے طالب علم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوزیشنز لیں گے. اور یہ آپ لوگوں نے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. جی اور یہ آپ نے ایفسکا کے لیول پہ اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں اور آپ انتظامات میں بھی ہیں، تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت زبردست سر. اور اتنے بڑے لیول پہ یقین کریں، یقین نہیں آتا کہیں پہ اتنا اچھی وہ مینجمنٹ، اور دوسرا یہ کہ کس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے، اور بہت زبردست ایونٹ ہے. آپ کا نام؟ محمد علی. جی بتائیں پروگرام کے بارے میں. جی بہت اچھا رہا ہے، ہمیں اپنے ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملا ہے، تو ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے. تو کیسی رہی آپ کی تقریر؟ آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھی، بہت اچھا لگا. ہماری انتہائی سینئر میڈم ہیں، پرنسپل ہیں میم آمنہ، جنہوں نے یہاں پہ چکوال میں کم از کم اپنے کیریئر کا آغاز بیریہ فاؤنڈیشن اسکول سے کیا، اور بیریہ فاؤنڈیشن اسکول کو اتنی بلندیوں پہ لے گئی کہ اب وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ادارہ سٹارٹ کیا اسٹیپ اسکول سسٹم. تو اسٹیپ اسکول سسٹم میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ اس کو بھی کہیں آگے لے گئی ہیں، جو کہ اب بیریہ سے بھی آگے چلا گیا ہے. تو ان کے ساتھ انہوں نے بڑا لمبا کام کیا ہے. یہ ٹیچر ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو کہ ان کا نام کیا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام مہوش مبین ہے. یہ مہوش مبین ہے ہمارے ساتھ. تو یہ بڑی سینئر ٹیچر ہیں، یہ پہلے بھی یہ جو ہمارے سپر سٹار آف چکوال کمپٹیشن ہوتے ہیں ان میں ایز اے جج
आती हैं, और इस दफ़ा फिर ये इन्होंने ये सुबह से बड़ी हिम्मत के साथ इतनी लंबा टाइम के लिए जजमेंट की है। तो इनसे पूछते हैं कि ये जजमेंट का इतना जो ज़बरदस्त काम है, तो ये आपने कैसे सीखा है? जी, ये तो एक्सपीरियंस से आता है। मैं हमारे स्कूल में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें मैं जजमेंट करती रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हो गया है, जिस वजह से मैं जजमेंट कर सकती हूँ। ये स्कूल का जो शोबा होता है ना एक्टिविटीज़ का, जिन स्कूल्स में ये काम हो रहा होता है वहाँ भी ये प्रैक्टिस सुबह शाम हो जाती है। तो ये सुपरस्टार ऑफ चकवाल में यहाँ पे आज जजमेंट आपने की, तो कैसा लगा आपका इनको बच्चों का रुझान, बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों की इंग्लिश उर्दू तकारीर? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की है और बच्चों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मतलब हम पूरी लाइफ भी बात करें तो कम होगा। हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आप किसको पोजीशन देने जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल ये बता दें मतलब बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी उससे आप मुतमईन थी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इदारे से हैं और आपकी प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जी बिल्कुल, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, और ख़ासतौर पे टीचर्स की बहुत एफर्ट है जिन्होंने बच्चों के साथ टाइम लगाया है और उनको इस काबिल बनाया है कि वो बहुत अच्छा बोल सकें। अच्छा, इसमें नर्सरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटी तक के बच्चे थे और उसके साथ जो है वो मदारस के बच्चे भी थे, तो ये जो कम्बिनेशन है और ये जो इनका बच्चों के दरमियान मुकाबले हैं, ये आपको कैसा लगा? और इनका जो इंटरेक्शन है आपस में मदारस और ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों का, ये आपको कम्बिनेशन अच्छा लगा या इसमें आपको कोई काबिल एतराज़ बात भी महसूस हुई? ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन वो ये है कि मदारिस का थोड़ा और एक्सेंट होता है, उनका अंदाज़ कुछ और होता है अपने मैसेज को डिलीवर करने का। तो अगर इस तरह ये हो कि दोनों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वो मदारिस के साथ ही कंपटीशन है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और स्पीचेस जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्कूल लेवल के हिसाब से ही स्पीच करें तो ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो है ना कि मदारिस की अपनी खूबियाँ हैं, और जो कॉलेज लेवल के जो हमारे रवायती इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के, उनका अपना है, और उनका आपस में जो बच्चों का मिल बैठना है, ये भी तो एक बड़ा मतलब ब्लेसिंग वाला काम है ना। इसके बारे में क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, एक दूसरे से बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं इस तरीके से जब एक साथ होते हैं तो, लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इनको अलग अलग ही होना चाहिए। चलिए मैम, ये बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बच्चों के लिए टाइम दिया और इतना लंबा टाइम दिया, और माशाल्लाह बड़ा स्टेमिना है आपका। अल्लाह पाक आपको और हिम्मतें और तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं आरिज़न डिग्री कॉलेज में, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा है सुपर स्टार ऑफ चकवाल के नाम से, और डिस्ट्रिक्ट चकवाल का जो सबसे बड़ा इवेंट है, तो उसकी मेज़बानी कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे से भाई, और इस खूबसूरत से और चकवाल के स्टेट ऑफ द आर्ट और सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के। तो ये सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इतना बड़ा इदारा तो चकवाल के अंदर कोई जो सरकारी लेवल पे हैं वो भी नहीं है, तो इनको क्या ख्याल आया और कैसे उन्होंने इतनी जो अपनी दौलत है माशाल्लाह बड़ी मेहनतों से कमाई हुई, ये कैसे उन्होंने खर्च करना पसंद की इस काम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सदर साहब आपका शुक्रिया कि चलें आपने जो आपका सुपरस्टार का जो आपका फंक्शन था उसको आपने ऑर्गेनाइज़ किया, और रियली इट वाज आउटस्टैंडिंग। बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, और आपके जो वर्किंग स्टाइल था या जिस मेथड के साथ आपने इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की वो भी बड़ा अच्छा था। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मुबारक दूंगा, और रियली मेरे लिए खुशी की भी बात है कि आपने इसको हमें भी टाइम दिया और हमने भी इसके ऊपर मैंने भी देखा और बड़ा अच्छा था। सेकेंडली, अब आपने होराइजन की बात की तो नो डाउट होराइजन को अब 18 ईयर्स हो गए हैं इसको स्टार्ट हुए। तो जो मेरा विजन था वो यही था कि स्ट्रगल फॉर एक्सीलेंस के ऊपर हमने हमेशा काम किया, और एक्सीलेंस का मतलब यही होता है कि आप वो चीज़ और वो एफर्ट्स करें जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए और जो एक यूनिक हो। सो मेरा अपना विजन हमेशा यही रहा है कि आप हमेशा वो काम करें जो यूनिक हो। अल्टीमेटली जब मैंने अपने आइडिया दिया तो हमने कोशिश की कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप करें जिसमें बच्चों के लिए एक एक्टिविटी, आपके एकेडमिक तो होता ही होता है, नो डाउट आपने एफर्ट्स करनी है, वो आपका कंपटीशन भी है वो लोगों की, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जिसमें बच्चा इजीली उस एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर भी काम करे और उसको एंजॉय भी करे और अपनी एजुकेशन को
कंटिन्यूसली एफर्ट्स के साथ विद पॉजिटिव माइंड के साथ उसको एंजॉय करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सफदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से हम कल भी आपके इस फंक्शन में तशरीफ़ लाए और आज भी हम इसमें तशरीफ़ लाए, और बहुत ज़बरदस्त आपने कल तिलावत और नात के कंपटीशन से और पूरे तहसील चकवाल के मुख्तलिफ स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे जो हैं जिन्होंने कल पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी जो बात थी वो जो मुझे बहुत खुशी हुई वो ये हुई कि मदारिस के बच्चों को भी आपने इस सारे सेटअप के अंदर इन जो कंपटीशन से इन मुकाबला जात के अंदर आपने उनको भी हिस्सा लेने का मौका दिया और उनकी एक बड़ी तादाद कल हमने तिलावत और नात के जो कंपटीशन थे उनके अंदर वो देखी। और उसके बाद आज जो आपका स्पीच का कंपटीशन था वो भी बहुत शानदार किस्म का रहा और इसमें यानी कि तहसील भर के बच्चे जो है ना मुख्तलिफ स्कूलों से यहाँ पे आए हुए थे और हर बच्चा एक बच्चे से बढ़ के टैलेंटेड था। और ये बहुत बड़ी आपकी काविश है कि इन बच्चों को, लेकिन निसाबी सरगर्मियों के साथ जो है ना गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो है ना ये भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि बच्चों के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो टैलेंट निखारने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि वो स्टेज पे आके जो बच्चा तिलावत का जिसको शौक़ है कुरान मजीद की तिलावत वो करता है उसको आपने तिलावत के हवाले से मौका दिया, जो नात का जिसको शौक़ है उसको आपने नात का मौका दिया, जो तकरीर करने का इंग्लिश स्पीच करने का जिसको शौक़ है वो यहाँ पे जो है ना मकसद आपका एक ही था जो आपकी हमारी डिस्कशन होती रही कि बच्चों को स्टेज पे लाने का मौका ताकि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो निखरें और वो अपने अंदर जो है ना उनकी जो अंदर कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। तो हमारे साथ जनाब एक नौजवान सियासी लीडर मौजूद हैं, फलाई और सियासी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी इनका तल्लक है, ज़ैन अली मज़हर साहब। इनसे पूछते हैं कि इनको ये प्रोग्राम कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि सर आपने हमें मौका दिया। तो सेकंड में सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं सर इसमें बेसिकली मैं खुद आपने बताया भी है, मैं खुद ओवरसीज़ हूँ तो मैंने एक चीज़ सर बड़ी फील की है और इसमें मैं बड़ा अपने आप को एक मुतासिर हूँ ये चीज़ आप में देख के कि आपने जो बच्चों को मौका दे रहे हैं सर। ये हम जब ओवरसीज़ हो जाते हैं बाहर जाते हैं सर हमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो मौजूद होती है वो यही होती है कि सर हम जब किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमारे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम वहाँ पर जाके किसी तरीके से किसी के सामने खड़े हो जाएं और इंटरव्यू अपना दे सकें। तो सर यहाँ पर ये जो मुख्तलिफ एजेस में आपने और माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोग्राम को अरेंज किया है इसमें सर मेरे हिसाब से तो आपने जो ये इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये लड़के और ये बच्चे बच्चियाँ आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इन लोगों के सामने इस हजूम के सामने अगर बोलना सीख रहे हैं, इन सलाहियतों को उजागर हो रही हैं इनकी, तो मैं समझता हूँ सर ये एक इसमें बहुत बड़ा आपका किरदार एक हो रहा है। और आने वाले वक्तों में ये बच्चे जब किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इनसे जब क्वेश्चंस होंगे और ये उनके आंसर्स देंगे इस अच्छे और कॉन्फिडेंट अंदाज से, तो मेरे ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम हो रहा है। जो प्राइवेट स्कूल्स के साथ एक और तंजीम अपना काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से और अच्छे तरीके से कर रही है और उसकी जो बैकबोन है वो माशाल्लाह उनके जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िले के, तो ज़ुएब भाई ये हमारे साथ हैं। ऑक्सब्रिज स्कूल है इनका, बड़ा ही आइडियल सा, और इसके साथ ऑक्सब्रिज एजुकेशन सर्विसेज भी हैं, तो ये बड़े अच्छे प्रोग्राम कराते हैं और ये मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें तो ये मास्टर हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये एक्टिविटी इनको कैसी लगी। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं सफदर साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया और हमारी कोशिश भी एप्समा की भी यही होती है और एप्सका की भी यही है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए। और जब ऐसे प्लेटफार्म पे बच्चे आते हैं तो डेफिनेटली उनकी सलाहियतें निखरती हैं और दूसरों के सामने आती हैं। माशाल्लाह ज़ुएब साहब की क़यादत में और जो मुइन साहब की क़यादत में अभी हमारे ये जो साथी तंजीम है एप्समा, इन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया है इकबाल डे पे, तो उसका कोई रुदात सुनाएं ज़ुएब भाई हमें। सर उसमें हमने कोशिश की थी कि इकबाल डे पे एक तो हमने उर्दू तकरीरी मुकाबला जात मुनक्किद किए थे, इसके अलावा उर्दू मज़मून नवीसी थी जिसका उन्वान भी अल्लामा इकबाल की ज़ात थी, और उसके अलावा हमने कलाम इकबाल पे, ये 3 हमारे कंपटीशंस थे। और उसमें डिस्ट्रिक्ट तलागंग और चकवाल ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत बड़ी तादाद में स्कूलों ने शिरकत की और बच्चों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मनवाने का मौका मिला। बिलाशुबा बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। और आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आपके प्रोग्राम के बड़े चर्चे हैं, हमारे साथ है और ये सारे जब मिलजुल के आगे अगर 1-2 फेस हैं तो उसके पीछे पूरी टीम खड़ी होती है, उनकी मेहनत होती है
اور جہاں تک چرچوں کی بات ہے تو آپ کا بھی ماشاءاللہ جو کمپٹیشن ہے اس کے بھی بہت چرچے ہیں پورے ضلع میں، اور ڈیفینیٹلی آپ بہت محنت کر رہے ہیں اس پہ، اور آپ کا اگین بہت شکریہ جو آپ بچوں کے لیے اتنا ٹائم نکالتے ہیں اور انہیں یہ ایسے ایونٹس آرگنائز کر کے دیتے ہیں.